ओके, अभिषेक वर्मा जी, क्या नाम है Yes, आपका sir. पूरा नाम? Abhishek Verma, sir. ओके, आप रेडी है? Yes, sir. ओके, चलिए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. My full name is Abhishek Verma, and I belong to Barabanki district of Uttar Pradesh. I am an enthusiastic and determined person. I have completed my intermediate in 2012 from Lucknow Public School in Lucknow. I have completed my graduation from Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya. In 2018, I have completed my Bachelor in Physical Education with specialization in badminton from Sant Bhikadas Ramjas Mahavidyalaya, which is affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya. So my hobbies are I love to read fiction novels and I love travel. Thank you, sir. That's all for me. Okay, after bachelor degree, what you are doing now? So after bachelor degree in physical education, sir. Yeah, you had completed your bachelor degree in 2018, I think, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, after 2018, what you are doing now? So I have preparing for exams only. From like- 2018 onwards? Yes, sir. And that means during COVID also you are preparing, and now also you are preparing? So not fully. I was dedicated to preparation. I was distracted a lot, but from past 2 years, I have started preparing with enthusiasm. That means why you had not gone for master degree, or why you had try for job? So I've not got any opportunity. So that's the reason. I'm preparing for the government exams, jobs. Yeah, but I think along with master degree, you can prepare yourself for government exam or any government job. Why you hadn't try for any master degree? So I don't have any specific excuse for that. But Because from 2018, that means you are preparing. I think it's better at the time of COVID also. So many colleges are giving this degree online also. At that time also, आपके पास बहुत अच्छा मौका था कि डिग्री कंप्लीट करे. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का नहीं निकला था या निकला भी था, देन आप मास्टर डिग्री का कोशिश कर सकते थे आप ना? yes, sir, I should have tried. मतलब तैयार रहिएगा ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्योंकि आपका लॉन्ग गैप है. आफ्टर 2018 नाउ इट इज 2023 बिकॉज 5 years आप क्या कर रहे और क्या कर रहे हो, that will ask. Okay? Yes, sir. Okay, fine. That means from 2018 you are preparing for government job. Okay? Yes, sir. How many government job you had given now? How many exam for government job? So I've given for UPSSC like Lekpal and his PET, their eligibility test for UPSSC exams. And Until now, how many exam you had cleared? so finally I have not cracked anyone full. That means you had cleared written exam of KVS. Yes, sir. And before that, any written exam? So I have cleared PET of UPSSC. And what about that post? आपने उसमें ज्वाइन क्यों नहीं किया? Sir, it is just a eligibility exam for other exams. It's like a pre for all other mains. Okay, fine. Okay, then what is your specialization? Badminton? Yes, sir. बैडमिंटन के बारे में कुछ बताइए. So badminton, sir, it is a sport which originated in Pune when by Britishers, and later it was modernized in England, and it was named after a duke which is from a badminton named family. So badminton got his name from them, and in 1962 it was introduced in Asian Games, and in 1966 it was introduced in Commonwealth Games. In 1972 it got a place to demonstrate itself in the Olympics, and in 1988 it got it got a place to exhibit itself in Olympics, and finally in 1992 it became a part of Olympics. Okay. What do you think the position of badminton in school? Yes, आपको क्या लगता है बैडमिंटन का क्या पोजीशन है स्कूल्स में? स्कूल्स के बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए? सर जहाँ तक मुझे मालूम है कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि सर ज्यादातर वो लोग एथलेटिक्स में ज्यादा पार्ट लेते हैं, और इसमें सर और ज्यादा बच्चे भी होते हैं, कभी कभी संसाधन इतने उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वो चीजें उतनी नहीं बढ़ पाती हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग अपने फैमिलीज में ज्यादा खेलते हैं ये स्कूल से ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे संसाधन शायद. तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, बच्चों के बीच में इसको पॉपुलर करने के लिए, बच्चों को इसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सर इसके लिए सबसे फ्रॉम योर साइड एनी एफर्ट, अगर आपको दिया जाए ये जिम्मेदारी कि आप बच्चों के बीच में इंटरेस्ट डेवलप करिए, कैसे करेंगे आप? सर सबसे पहले तो सर मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ बच्चे ना खेलते हों, तो उनको और फोकस करूंगा कि और खेलें, और उसके बाद में जब वो थोड़ा बहुत पॉपुलर होंगे कॉलेज में तो उनको देख के और भी बच्चे अपने आप आएंगे ही खेलने की तरह के लिए, तो थोड़ा सा
अपने गेम को पॉपुलर करना है तो लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। किस एज के बच्चों को बैडमिंटन खिला सकते हैं? सर आई थिंक 14 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके पहले थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 15 से ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन केवीएस में तो क्लास 6 के बच्चे भी खेलने जाते हैं, उनको आप खेलने नहीं देंगे? उनका तो 10 ही साल होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, खेलना नहीं देंगे उनको, और भी गेम्स जो होते हैं वो खिलाएंगे सर, क्योंकि तो अगर उसमें से कोई आएगा बैडमिंटन खेलने जाना, उनको आप मना कर देंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मना करेंगे। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उसको पूरी शिद्दत से सिखाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर मन है तो वो छोटी उम्र में भी सीख सकता है, ऐसा कुछ खास। 6-7 के बच्चों को बैडमिंटन आप सिखाएंगे? सर सिखा देंगे। सेम उसी या कैसे सिखाएंगे? 6-7 के बच्चों का सिखाने का और 11-12 के बच्चों में आपका क्या डिफरेंस रहेगा? सर ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों को बिल्कुल भी नहीं आता है। आपके पास एक ही कोर्ट है ना? जी सर। आपके पास एक ही बैडमिंटन कोर्ट है जी सर। और आपके पास बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी सर। आपको उसी में क्लास 6 का भी गेम्स पीरियड लेना है और 11-12 का भी लेना है। बैडमिंटन सिखा के बताइए कैसे सिखाएंगे? सर एक ही टाइम पे, एक ही पीरियड में? ना, आपके पास कोर्ट लिमिटेड है, एक ही कोर्ट है। ओके। उसी में आपको कभी 6 के बच्चों को भी लेना पड़ेगा, कभी 11-12 के बच्चों को भी लेना पड़ेगा। ठीक है सर। कैसे करेंगे आप? सर मान के चलते हैं कि 6 और 7 इस क्लास के बच्चे और 11th क्लास के बच्चे, दोनों ही बच्चों को नहीं आता है, तो स्टार्टिंग से सिखाना है। तो सर सबसे पहले 6-7 के क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत स्पेसिफिक तो नहीं सिखा सकते, उनको थोड़ा बहुत सिखाएंगे कैसे पकड़ते हैं, ग्रिप, फोरहैंड ग्रिप, बैकहैंड ग्रिप क्या होती है, और सर उनको थोड़ा मतलब लाइंस के बारे में बताएंगे, डायमेंशंस के बारे में बताएंगे, और उनको मतलब चीजों के बारे में बताएंगे और धीरे धीरे सिखाएंगे। और उसके बाद सर 11-12 के जो बच्चे होते हैं सर, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, उनको जो चीजें इधर बताएंगे 6-7 के बच्चों को उधर ही बताएंगे, बस लेकिन उनकी एजिलिटी और सर उनकी स्ट्रेंथ और उनकी सर जो फोकस पॉइंट्स होते हैं, लाइक आपका सर मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है सर, क्योंकि शॉट्स होती हैं कई तरह की, जैसे फोरहैंड मेरे को देखिए 6 के छोटे बच्चे होंगे है ना? यस सर। और 11-12 के बड़े बच्चे होंगे। जी सर। आप उस कोर्ट पे क्या कर सकते हैं? क्या आप सेम कोर्ट सेम लेंथ में ही दोनों को सिखाएंगे? सर स्टार्टिंग तो ऐसे ही करेंगे, आदत पड़ जाएगी, और उनकी हाइट छोटी है तो थोड़ा जो बीच में नेट होता है उसको नीचे कर देंगे, बस इसके अलावा क्या करें। चलिए, अभी तो ये फॉर्मल इंटरव्यू है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, बाद इसका आंसर आप बाद में मेरे से सुन लीजिएगा। ओके। मैं आपसे जो सुनना चाह रहा था वो आप बता नहीं रहे हो, है ना? इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा आंसर दूंगा, वो आप मेरे से सुन लीजिए। एनीवे, आपका थ्योरी के बारे में कुछ बताइए, आप क्या पढ़ा सकते हैं? सर थ्योरी आपने क्या क्या पढ़ा है? सर मैंने टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा है सर, और सर सभी पढ़ा है। नहीं मतलब कुछ टॉपिक जो आपके हिसाब से, या आपको क्या लगता है आपने क्या क्या पढ़ा है? सर मैंने टूर्नामेंट, चलिए आपने टूर्नामेंट्स का नाम लिया है, कब टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नॉकआउट और लीग, ठीक है? हम इतने में रहेंगे, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। जी सर। नॉकआउट एंड लीग, यस सर। किस किस कंडीशन में बेस करके आप नॉकआउट कराएंगे या किस कंडीशन में बेस करा के लीग कराएंगे? सर जब टीमें ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा, तो लीग कराते हैं, और जब कम होती हैं तो नॉकआउट कराते हैं। सिर्फ यही एक फैक्टर से, नंबर ऑफ टीम्स, इट मींस यू वांट टू से नंबर ऑफ टीम्स, कि डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टीम्स हम डिसाइड करेंगे नॉकआउट कराना है या लीग कराना है, सॉरी लीग कराना है ना? नो सर, इसमें एक फैक्टर और जुड़ और जाता कुछ है। फैक्टर्स? ये सर एक फैक्टर इसमें और जुड़ जाता है कि नॉकआउट में बहुत कम, मतलब एक दूसरे से जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो कम हो जाते हैं। सर लीग में ना हर टीम को एक से ज्यादा मौके मिलते हैं एक दूसरे के साथ खेलने के, उसमें चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कि अगर एक टीम परफॉर्म नहीं कर पाई तो वो आगे अच्छा से परफॉर्म करके बढ़ा सकती है। आपके पास 12 टीम है, ओके सर, और 4 डेज है, आप क्या कराएंगे? उनको ट्रेन करना है। नहीं 12 टीम है, Yes, 4 डेज में उनका टूर्नामेंट खत्म करना है, आप उनको लीग कराएंगे या नॉकआउट कराएंगे? नॉकआउट। 12 टीम्स मे बी ऑफ कबड्डी, मे बी ऑफ बास्केटबॉल, मे बी ऑफ हैंडबॉल, whatever it is, क्योंकि हार्डली सबका 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 25 मिनट्स ऐसे ही गेम ड्यूरेशन है, यस सर, है ना? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं जो पूरा दिन भर लगता है, जो भी गेम हार्डली 30-35 मिनट्स, 25 मिनट्स ऐसे लगता है, हम उसकी बात कर रहे हैं ना, टीम गेम्स की। यस। अगर मैं आपको 12 टीम दे दूं एंड आई एम गिविंग यू 4 डेज, व्हाट टाइप ऑफ टूर्नामेंट यू विल सिलेक्ट एज ए इंचार्ज? सपोज आपको मैंने बना दिया, आप इसको खत्म करिए, 12 टीम मैंने आपको दे दिया है, नॉकआउट नाउ ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट, व्हाट, नॉकआउट और लीग? नॉकआउट। नॉकआउट। यस सर। कितना मैचेस होंगे 12 टीम होने से? सर सॉरी सर, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा कितना राउंड्स में खत्म होगा 12 टीम होने से? 4 राउंड्स। व्हाई 4? तो 22 भी लगेंगी। 22 लगेंगी, बस व्हाई 4?
Sorry, sir, I cannot explain. Right. Okay, no issues. What is the importance of health or physical activities? Sorry, what is the importance of physical activities for student? सर फिजिकल एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ क्योंकि एक स्टूडेंट है वो मान के चलते हैं कि बहुत ही कम उसमें जाते हैं कि उनको आगे प्लेयर बनना है, तो फिजिकल एजुकेशन और या फिर फिजिकल एक्टिविटीज से सर उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है सर। क्योंकि ऐसा देखा गया है और एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं इसके ऊपर कि जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं सर उनका फोकस अच्छा रहता है, वो अच्छे सिटीजन बनते हैं आगे जाके, और सर उनका मतलब बिहेवियर भी काफी सही रहता है और वो लाइफ में आगे उनके कई चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अच्छा कर सकें। ओके, तो व्हाट आर द चैलेंजेस? आप क्या चैलेंजेस आप फेस कर, अगर मान लीजिए बच्चे आपके पास है 40 स्टूडेंट्स, यस सर। है ना, किस टाइप का चैलेंज आप फेस करेंगे जब बच्चे आपके पास होंगे? आपको मैं 40 बच्चों का एक क्लास दे दिया, यस सर। नाउ आप उस क्लास को ऑर्गेनाइज करिए, है ना? यस सर। किस किस टाइप के चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं उसमें? तो इसमें सबसे पहले जो क्लास में आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप आ सकता है प्रॉब्लम की, उतना कि जैसे बैडमिंटन खिलाना है तो उतनी रैकेट्स और शटल्स ना हो, या फिर कोई और गेम खिलाना है तो उसमें इंफ्रा का थोड़ा आ सकता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ग्राउंड्स की चीजें रहती हैं तो सर वहाँ पे। और सर दूसरी चीज होती है डिसिप्लिन का प्रॉब्लम आ सकता है सर, और बहुत से बच्चे होते हैं वो थोड़ा गीक्स टाइप के होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है बिल्कुल पढ़ाई में, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको समझाना कि फिजिकल एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। और सर आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे? सर जैसे मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो सर उसमें कई सारी ड्रिल्स होती हैं जिसकी वजह से एक साथ कई लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और सर जैसे डिसिप्लिन के लिए सर उसमें से थोड़ा सा समझा के, थोड़ा प्यार से, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हैंडल करना पड़ेगा। और सर जैसे गीक्स के बारे में बताया तो सर उनकी तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको लाइफ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का दायरा बहुत सीमित होता है सर, उनको ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हम चाहेंगे कि उनको ऐसे लोगों के बारे में बताए कि जो बच्चा अच्छा होता है वो लगभग हर फील्ड में अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, बल्कि इफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, जो आप 2 घंटे में कर पा रहे हो वो आप 1.5 घंटे में कर पाओगे। तो सर इन चीजों की वजह से, इन सब चीजों से हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे। Okay. The badminton is which type of game? इसमें सब फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट ज्यादा यूज है? सर What are the components of fitness? सर एजिलिटी, एंड्योरेंस, Agility, endurance. सॉरी सर नहीं आ रहा है ना, मतलब देखिए हर गेम में कुछ ना कुछ बेसिक उसका मेन स्ट्रेंथ कुछ होता है, जी तो बैडमिंटन में ऐसा क्या है, उसका मेन कंपोनेंट्स क्या है? सर उसमें एजिलिटी आई थिंक सबसे मेन है। आपके हिसाब से एजिलिटी? यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी? सर एजिलिटी को बोलते हैं फुर्तीला, कितनी जल्दी से डायरेक्शन चेंज कर पा रहा है और कितना उसका रिफ्लेक्स टाइम है। और सर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में होता है कि जो हम सोच पा रहे हैं वो हमारे मूवमेंट उस हिसाब से हो पा रहा है कि नहीं, मतलब माइंड और मसल का कनेक्शन कैसे होता है सर, इस चीज कोऑर्डिनेटिव। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? यस सर, सॉरी सर, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी सर क्या इसका डिफरेंस या फिर? हाँ, ऐसा कोई डिफरेंस है उसके बीच में? ये सर डिफरेंस है, बिल्कुल है सर। एजिलिटी क्या होता है कि सर वही कितना फुर्तीला है आदमी, और सर फ्लेक्सिबिलिटी तो सर ये होता है कि आपके जॉइंट्स के मूवमेंट कितने हैं और आप कितना टर्न कर पा रहे हो, मूव कर पा रहे हो, तो डिफरेंस तो है। ओके, देखिए आपके पास हमने आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है ना? यस सर। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आज, ठीक है? ओके। और भी शायद बहुत लोग हैं। हाउ कैन यूज टेक्नोलॉजी? आप आज के डेट में आप भी टेक्नोलॉजी के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा एडवांस फॉर्म में होंगे, या बच्चे भी होते हैं, ठीक है? आप इस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए? सर टेक्नोलॉजी का सर जैसे हॉकाई टेक्नोलॉजी है, 22 डिवीजन है, ये बैडमिंटन वगैरह में यूज होती है सर। स्कूल लेवल पे तो इनको कर नहीं सकते, बट सर सबसे अच्छी चीज ये कर सकते हैं कि सर जैसे प्रोजेक्टर हो गया, उसकी वजह से हम बच्चों को गेम सुधारने में हेल्प कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी चीजों को सुधारें। जो ओलंपिक लेवल पे लोग खेलते हैं उनकी ट्रिक्स, उनकी टैक्टिक्स उनको हम सिखा सकते हैं सर। और सर इंटरनेट है सर, उसमें और उनको बता सकते हैं कि आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लोर करिए, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो एक्सप्लोर करेगा ही सर। सर ये टीम बनाने के लिए सर और मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए जो स्पोर्ट्स वगैरह के होते हैं सर, उसमें सर IT का यूज कर सकते हैं सर। अभी तो यही आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू।